السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ امور طبیعہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم لوگ امور طبیعہ کے بارے میں جانیں، یہ جاننا ضروری ہے کہ علم طب کیا ہے، کیونکہ علم طب کی ہی ایک کلاسیفیکیشن امور طبیعہ ہے۔ تو چلیے جانتے ہیں کہ علم طب کیا ہے یا پھر طب کیا ہے۔ طب یعنی میڈیسن۔ طب ایک عربی زبان کا لفظ ہے جو مختلف موقعوں پر مختلف معنوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم لوگ طب کے معنی کے بارے میں جانیں، یہ جاننا ضروری ہے کہ طب کی شروعات کیسے ہوئی، طب کی شروعات یا پھر ابتدا کیسے ہوئی۔ ویسے تو یہ ٹاپک تاریخ طب کا ہے، لیکن ہم مختصراً طور پر یہ جانیں گے کہ طب کی شروعات کیسے ہوئی، اس کے بارے میں لوگوں کے خیالات کیا ہیں، تھیوریز کیا ہیں۔ ویسے تو آپ تاریخ طب میں پڑھیں گے کہ مصری طب کیا ہے، چینی طب کیا ہے، یونانی طب کیا ہے، یونانی طب کا نام کیسے پڑا، لیکن ہم اس میں صرف مختصراً طور پر یہ پڑھیں گے کہ طب کی شروعات کے بارے میں لوگوں کے خیالات کیا ہیں۔ چلیے طب کی ابتدا کے بارے میں الگ الگ تھیوریز ہے، 3 تھیوریز ہے۔ سب سے پہلی تھیوری ہے قیاس، یعنی لوگوں نے قیاس کیا کہ جب دنیا شروع ہوئی ہوگی، جب زندگی کا آغاز ہوا ہوگا تو موت بھی واقع ہوئی ہوگی، اور ہر جانور کو فطری طور پر اپنی زندگی عزیز ہوتی ہے۔ تو انسان جانور بھی اپنی زندگی کی حفاظت کے لیے قدرتی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جیسے اگر بدہضمی کا شکار ہو جائے کوئی بھی جانور، چرندے پرندے کوئی بھی بدہضمی کا شکار ہو جاتے ہیں، تو وہ لوگ اس صورت میں کھانا نہیں کھاتے یا پھر چارہ نہیں کھاتے۔ اسی طرح سے بعض دواؤں کا استعمال انسانوں نے جانوروں سے ہی سیکھے۔ جیسے ایک سانپ کو سونف کے پتوں پر آنکھوں کو رگڑتے دیکھ کر انسانوں نے یہ قیاس کیا کہ شاید یہ سونف کا پتا آنکھوں کے لیے مفید ہے، اور جب اس پر تجربہ کیا گیا تو پتا چلا کہ واقعتاً سونف کا پتا یا پھر سونف آنکھوں کے لیے بہت مفید ہے۔ اس طرح سے لوگوں کا قیاس ہے کہ ہر جانور اپنی زندگی گزارنے کے لیے ایک صلاحیت رکھتا ہے، اور اسی قیاس پر یہ قیاس کرتے ہیں کہ طب کی ابتدا اس طرح ہوئی ہوگی۔ اب دوسری تھیوری عقائد پر ہے۔ اب مختلف مذہب کے ماننے والے مختلف عقائد رکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ جو مسلمان ہیں یا اسلام کے ماننے والے ہیں، ان کے کیا عقائد ہیں۔ جو اہل اسلام ہیں ان کے یہ عقیدے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کو بہت سارے علوم سکھائے اپنی زندگی گزارنے کے لیے، تو اس میں سے ایک علم علم طب تھا۔ لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم طب کے علوم دیا، اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے الہامی طور پر علم طب کا علم دیا تھا۔ اب یہ تو ہوگا اسلامی عقائد۔ آپ جانتے ہیں، چلیے دوسرے مذاہب کے کیا عقائد ہیں۔ علم طب کی ابتدا کے بارے میں غیر مسلموں کے عقائد یہ ہیں، جو یہودی حضرات ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کو فن طب کو شروع کرنے والا مانتے ہیں، اور جو ہندو بھائی ہیں وہ اپنے بھگوان برہما کو فن طب کی شروعات کا بانی مانتے ہیں۔ اسی طرح سے جو مجوسی ہیں وہ اپنے پیغمبر زرنشت کو فن طب کا شروعات کرنے والا مانتے ہیں، اور اسی طرح سے ستارہ پرست جو اپنے مذاہب کے پیشوا کو مانتے ہیں کہ وہ طبیب اول تھے۔ اسی طرح سے قدیم یونانیوں نے، جو پہلے کے یونانی جو پریکٹیشنرز تھے، انہوں نے اسکلیپیوس اول کو طبیب اول کہا ہے۔ یہ تھا عقائد کے بارے میں۔ اب تیسری جو تھیوری ہے وہ آثار و شواہد، یعنی جو ایویڈنسز ملے ہیں اس کی بنیاد پر۔ اب جیسا کہ ہم لوگوں کو پتا ہے کہ جو بھی
फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उसकी बुनियाद पर हम लोग ये कयास करते हैं कि शायद ये ऐसा होगा, जैसे कि डायनासोर्स के जो हड्डी मिले हैं उससे ये कयास किया जाता है कि ये फला डायनासोर फला तरह होगा, फला डायनासोर गोश्तखोर होगा, फला डायनासोर जो है सब्जी खोर होगा। इसी तरह से जब पुराने इंसानों के, कदीम इंसानों की हड्डी दरियाफ्त की गई तो उससे पता चला कि जरासीम जो है इंसानों की वजूद से पहले ही मौजूद थे। तो इससे मालूम हुआ कि पत्थर के जमानों में भी जरासीम जो है मौजूद थे और अमराज फैलाते थे। और जैसा कि हमने कयास में पढ़ा है कि हर जानदार को अपनी जिंदगी अजीज होती है और वो जो है अपनी जिंदगी की हिफाजत के लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाता है। तो ये कयास किया गया है कि जब जरासीम पहले से ही थे तो इंसानों को वैसे ही जिंदगी अजीज है, तो उन्होंने जरूर व जरूर कोई ना कोई तरीका इख्तियार किया होगा। तो इसी को जो है एविडेंस के तौर पर लिया गया है। तो ये मुख्तसर तौर पर ये थे तिब की इब्तिदा के बारे में, मुख्तसरन आपको जो है बता दिया। अब आते हैं एक मशहूर जो है कौल है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि किताबों में दिया गया है। मशहूर है कि तिब मादूम थी, बुकरात ने उसे पैदा किया। वो मर चुकी थी, जालिलूस ने उसे जिंदा किया। गैर मुरत्तब और बिखरी हुई थी, जकरिया राजी ने उसे तरतीब दिया। और इसी तरह वो नामुकम्मल थी, शेखुर रईस ने उसे मुकम्मल किया। एक मशहूर कोट है या फिर अकवाल है जो किताबों में दर्ज किया है, तो मैं जरूरी समझकर यहां दिया हूं, उसे पढ़ लीजिए। अब चलिए जानते हैं तिब के माने के बारे में। वैसे तो इसके दो तरह के मानी होते हैं, एक लग़वी मायना और एक तिब्बी मायना। चलिए पहले डिस्कस करते हैं लग़वी मायना। लग़वी मायना यानी डिक्शनरी मीनिंग। अब डिक्शनरी मीनिंग में आपको कई तरह के मीनिंग मिल जाएंगे, यानी तिब को जो है किन मानों में इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले तो जादू यानी मैजिक, किसी किसी किताब में जो है मैजिक के तौर पर तिब को इस्तेमाल किया गया है, जादू के मानों में इस्तेमाल किया गया है। और इसी तरह से दस्तकारी यानी हैंडीक्राफ्ट, जो लोहार वगैरह लोहा बनाते थे या फिर जो पॉट वगैरह बनाते थे हैंडीक्राफ्ट, उनके बारे में जिक्र किया गया। तिब को जो है इस मानी में भी इस्तेमाल किया गया। इसी तरह से महारत यानी जो स्किल्स पर्सन होते थे, तो महारत के तौर पर भी जो है महारत के मानों में भी जो है तिब का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है कई किताबों में। और इसी तरह से इरादा यानी इंटेंशन, कई मानों में जो है तिब को इरादा के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया है। और झाड़ फूक के मानों में भी जो है तिब के लफ्ज को इस्तेमाल किया गया है। ये थे लग़वी मायने या फिर डिक्शनरी मीनिंग। अब जानते हैं तिब्बी मायना यानी मेडिसिनल मीनिंग। इसके जो है मेडिसिनल मीनिंग क्या है तिब के मेडिसिनल मीनिंग के मेडिसिनल मीनिंग है सेहत की हिफाजत करना और मर्ज का इजाला करना। ये दो मानों में जो है मेडिकल फील्ड में तिब को इन दो मानों में ही इस्तेमाल किया जाता है। एक तो सेहत की हिफाजत करना यानी प्रिवेंशन फ्रॉम द डिसीज, और मर्ज का इजाला करना यानी डिसीज को दूर करना। ये हो गए माने के बारे में। अब जो है हम लोग इल्म तिब के बारे में या फिर उसकी तारीफ पढ़ेंगे। इल्म तिब यानी नॉलेज ऑफ मेडिसिन, इंग्लिश में अगर उसका ट्रांसलेट करेंगे नॉलेज ऑफ मेडिसिन, लेकिन एक प्रॉपर तौर पर जो किताबों में तारीफ लिखी हुई है उसको देखते हैं। चलिए, तिब वो इल्म है जिसमें कवानीन की मदद से बदने इंसान के हालात सेहत और ज़वाल सेहत को मालूम किया जाता है ताकि सेहत की हिफाजत और मर्ज का इजाला करने की तदाबीर इख्तियार किए जाएं। यानी तिब वो इल्म है जिसमें कवानीन यानी जो भी हम पढ़ रहे हैं, जैसे उमूर तबिया, जैसे कुलियात, और इसी तरह से जो है अनाटमी, फिजियोलॉजी, बहुत सारे ये सब कवानीन हो गए। तो इसमें कवानीन की मदद से जो भी हम सीख रहे हैं, दवाइयों को कैसा बनाना है, दवाइयों को कैसा इस्तेमाल करना है, मिकदार खुराक क्या देना है, ये तमाम जो है कवानीन में आ जाएंगे। तो ये कवानीन हम जब जान जाएंगे तो हम क्या करेंगे, बदने इंसान के हालात सेहत और ज़वाल सेहत को मालूम करेंगे कि
नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन कौन सी है इंसान की और पैथोलॉजिकल कंडीशन कौन सी है, ये जब हम लोगों को मालूम होगा तो हम क्या कर सकेंगे, सेहत की हिफाजत कर सकेंगे। यानी डिसीज अगर नहीं है, एक कोई हेल्दी पर्सन है, तो उसकी सेहत की किस तरह हिफाजत करना है वो कर सकेंगे। और अगर कोई डिसीज्ड पर्सन है, यानी अगर किसी को मर्ज हो गया है, तो उस मर्ज को कैसे दूर करना है उसके भी तदबीर इख्तियार किए जाएंगे। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। चलिए अब जानते हैं कि इसका टॉपिक क्यों है, क्यों हम लोग जो है इल्म तिब को पढ़ते हैं, इसका टॉपिक क्या है, इल्म तिब का मौजू क्या है। इल्म तिब का मौजू जो है बदने इंसान है। अब इसका गर्जो कायत देखेंगे, यानी इल्म तिब की गर्जो कायत क्या है, क्यों हमें पढ़ना है। इल्म तिब की जब गर्जो कायत देखेंगे, इसमें 2 पॉइंट आएंगे, एक सेहत की हिफाजत करना और दूसरा मर्ज का इजाला करना। इसका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, यानी इल्म तिब की एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, सेहत की हिफाजत करना यानी प्रिवेंशन फ्रॉम द डिसीज, और मर्ज का इजाला करना यानी डिसीज को दूर करना। ये हो गए इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स या फिर गर्जो गायत। अब चलिए हम देखते हैं कुलियात तिब। कुलियात तिब क्या है, चलिए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। कुलियात तिब जो है वो कुल्ली और जुज़ी उसूल का मजमुआ है जो इल्म तिब हासिल करने के लिए लाजमी और बुनियादी हैसियत रखते हैं। इससे पहले ये जाने कि कुल्ली और जुज़ी क्या है, चलिए ये जानते हैं कि उसूल क्या है। उसूल के माने आते हैं कायदे और कानून। तो इस तरह से कुल्ली यानी आम, टोटल, कुल से कुल्ली लिया गया है, और जुज़ी मतलब जुज, खास जुज। कुल्ली होगा टोटल, कुल, आम, जुज़ी मतलब खास। इससे पहले कि हम लोग इसके डेफिनेशन या इसके अकसाम जाने, कुलियात तिब के अकसाम जाने, कुलियात के बारे में जानते हैं। कुलियात क्या है, कुलियात के माने क्या आएंगे। कुलियात जो है, जिस तरह से मैंने कहा, उसूल मतलब कोई भी आप इल्म सीख रहे हैं, चाहे वो डॉक्टरी के लाइन में हो, चाहे वो आप पुलिस अफसर बनने के लाइन में हो, चाहे वो आप जो है वकील बनने के लाइन में हो, हर लाइन के इल्म सीखने के लिए आपको कुछ कायदे, कुछ कानून को फॉलो करने पड़ते हैं। उसी का नाम जो है, वही कानून और कायदे जो है उसूल हैं। अब कुलियात क्या है, जो वो उसूल और कायदे होते हैं जिनका जानना और उन पर अमल करना इल्म तिब हासिल करने के लिए जरूरी है, उसी को कुलियात कहेंगे। जैसे कि उमूर तबिया है, कुलियात अदविया है, इन सब का जानना और इन पर अमल करना इल्म तिब हासिल करने के लिए हमारे लिए जरूरी है। ये हो गए कुलियात। तो कुलियात मतलब वो तमाम उसूल या फिर कायदे जिनको एक तबीब को इल्म तिब हासिल करते वक्त उनका जानना और उन पर अमल करना इल्म तिब हासिल करने के लिए जरूरी है। अब चलिए कुलियात के अकसाम देखते हैं। कुलियात तिब जो है, ये उसूल और कायदे जो है 2 तरह के होते हैं। पहला जो है कवायदे कुलिया, दूसरा जो है कवायदे जुजिया। चलिए देखते हैं कवायदे कुलिया क्या है। ये जो है वो आम उसूल है या फिर कायदे हैं जो आम मसाइल और अमराज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसका ताल्लुक किसी खास मर्ज से या हालत से नहीं होता। जैसे हम लोग में अमराज का इलाज भी सिद्ध करते हैं, यानी अगर किसी को बुखार हो गया है, बुखार मतलब जिस्म की गर्म हालत है, तो इसका हम अपोजिट इलाज करेंगे, यानी उसको ठंडे पानी में कपड़े को भिगाकर उसके सिर पर रखेंगे ताकि उसके बदन की दर्जे हरारत कम हो। यह हो गया इलाज बिज़िद, यानी गर्म मर्ज को हम सर्द दवाएं देकर या सर्द तदाबीर इख्तियार करके उसे कम कर रहे हैं। इसी तरह से सर्द मर्ज में जैसे कि खांसी, उसमें बलगम को निकालने के लिए हम गर्म अदविया देंगे या फिर गर्म मिजाज के दवाओं को इस्तेमाल करेंगे ताकि वो जो बलगम जमा हुआ है वो बाहर निकल जाए। यह हो गया कवायदे कुलिया, यानी जो आम तौर से मर्ज में इलाज भी जिद के तौर पर, अपोजिट तदाबीर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अब कवायदे जुजिया, यानी
وہ اصول اور قاعدے ہیں جو کسی خاص مسائل اور امراض کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. فار ایگزامپل، حیضہ ہے، تعاون ہے، ملیریا ہے. اب حیضہ کیسے قواعد جزیہ میں آئے گا؟ اب جیسے حیضہ ہے، کولرا ہے، اس کو آپ صرف علاج کرنے سے کام نہیں چلے گا، اس کے پریونٹیو میجرز اختیار کرنے پڑیں گے. اگر کسی ایک کو حیضہ ہو گیا ہے، اب تمام گھر کو جو ہے سینیٹائز کرنا پڑے گا، اور لوگوں کو جو ہے ہاتھ بار بار دھوتے رہنا پڑے گا، اور اسی طرح سے پانی اچھی طرح سے ابال کر استعمال کرنا پڑے گا. کیونکہ اگر مان لیجئے کوئی ڈیفیکیٹ کرنے کے لیے باہر جا رہا ہے حیضہ کی صورت میں، تو اس سے امراض پھیل سکتے ہیں پورے گاؤں میں. تو اس سے بچنے کے لیے ہم کیا کریں گے کہ پانی کو گرم کر کر پیئیں گے، اور اسی طرح سے سبزی کو اچھی طرح سے پکا کر کھائیں گے. یہ تمام پریونٹیو میجرز حیضہ کی صورت میں اختیار کرنا پڑے گا. صرف اس کو مریض کو دوائی دینے سے کام نہیں چلے گا. اسی طرح سے تعاون میں صرف مریض کو دوائی دینے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ آپ کو یہاں پریونٹیو میجرز اختیار کرنے پڑیں گے. آپ کو ماسک لگانا پڑے گا، آپ کو سوشل ڈسٹینس مینٹین کرنا پڑے گا. اس طرح سے آپ کو تعاون کا جو ہے اصول اور قواعد اپنانا پڑیں گے. اسی طرح سے ملیریا میں جب آپ ملیریا کسی کو ہو گیا ہے تو صرف آپ اس کا علاج کرنے سے کافی نہیں ہو جائے گا، بلکہ آپ کو اس علاقے میں جو مچھر ہیں یا پھر جو مسکیٹوز ہیں ان کا خاتمہ کرنا پڑے گا. اسی طرح سے اور دوسرے جو پریونٹیو میجرز ہیں، جیسے گڑھوں میں پانی بھر جاتے ہیں، اس کو جو ہے روکنا پڑے گا، اس کے روک تھام کے لیے میجرمنٹس اختیار کرنے پڑیں گے. یہ تمام تھے قواعد جزیہ. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں امور طبیعہ کے اگلے پارٹ یعنی اس کی کلاسیفیکیشن، علم طب کی کلاسیفیکیشن کے بارے میں پڑھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.